تو فلم کی شروعات میں ہم برف کے نیچے ایک دبے ہوئے انسان کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اب بھی زندہ تھا۔ کپڑے پہن کر تیار ہوا اور اپنے چاقو کو درخت سے نکال کر اپنے سفر پر روانہ ہوا، اور وہیں سے سین کٹ ہو کر ہمیں دو بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ بڑے بھائی کا نام جم تھا اور وہ اپنے بہن کے ساتھ اس بڑے سے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسے نہیں لگتا کہ اسے سروائیو کرنے کے لیے کسی بڑی کی ضرورت ہے۔ جم وہیں پر بیٹھ کر اپنے گن کے اندر بلٹ چیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے لگا کہ یہ گن ایک ٹوائے گن ہوگی، لیکن پاس جانے پر پتہ چلا کہ یہ گن ایک کیلکولائزر ہے جو دوسرے لوگوں کو بے ہوش کرنے کے کام آتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں اسے باہر سے آواز آتا ہے۔ وہ باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک آدمی آیا تھا جو اس کی چھوٹی بہن سے ان کے پیرنٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ جم سے بھی سوال کرتا ہے لیکن وہ جواب دیے بغیر اپنے بہن کو گھر پر لے آتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے گھر کو اچھی طرح لاک کرتا ہے، سیکیور کرتا ہے، اور پھر اپنے بہن کے ساتھ کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ہم ان کے گھر کے باہر ایک عجیب و غریب انسان کو دیکھتے ہیں جو اس گھر کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ گھر بلٹ پروف تھا اور وہ اندر آ نہیں سکتے تھے۔ یہاں پر پتہ چلا کہ وہ لوگ زومبیز تھے اور ان بچوں کو کھانا چاہتے تھے۔ اصل میں جس دنیا پر جم اور اس کی بہن رہتے ہیں، اس دنیا پر صرف 1% انسان ہی بچے ہیں اور باقی سب کو زومبی وائرس کھا چکا ہے۔ جم اور اس کی بہن کو زومبی سے اسی لیے ڈر نہیں رہتا تھا کیونکہ وہ اب ان کا روٹین کا حصہ بن چکا تھا۔ جم اور اس کی بہن گھر سے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں تو کل والا انسان جیک ان کے پاس آ جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ اپنے پارٹنر کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ آدمی آ کر پیار سے جم کی بہن کو گود میں اٹھا لیتا ہے، لیکن جم اسے ڈانٹ کر اپنی بہن کو نیچے اتار دیتا ہے، جس کے بعد وہ کپل ان سے ان کی پیرنٹس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جم اسے بتاتا ہے کہ وہ ضرورت کے سامان لینے کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو کپل ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہاں پر کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، جب تک تمہارے پیرنٹس نہیں آتے تب تک ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اب سین کٹ ہو کر یہاں پر ہمیں دوبارہ ایڈن کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں زومبیز کے درمیان میں کھڑا ہوا بنا زومبی سے ڈرے ہوئے اپنے ایک ہی ہتھیار سے سارے زومبیز کو مارتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ کپل جم کے گھر پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کی سہولت کے ساتھ کئی دنوں تک سپلائیز بھی موجود ہے، اسی لیے وہ دونوں یہاں پر رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ جم اور اس کی بہن یہ بچے گھر پر اکیلے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جم ان کے چھپ کے سن رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ڈراتا ہے۔ وہ اپنے بہن کو سیف کمرے میں بند کر لیتا ہے اور جم کا ڈاگ بھی جم کو سونگ کر بھونکنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر اب رات بھی ہو چکی تھی۔ کپل رات کے سمے اپنے گھر کے آس پاس بہت سارے زومبیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہ دونوں ڈرتے ہوئے گھر کے سارے لائٹس بند کر دیتے ہیں، لیکن تبھی اچانک پیچھے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور کوئی اس دروازے سے نکل کر اس لڑکی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں وہ لڑکی زخمی حالت میں دکھایا جاتا ہے اور کوئی اسے کھینچ کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں یہاں پر نہیں دکھایا جاتا۔ اور یہاں پر سین کٹ ہو کر ہمیں اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ایڈن کو ہم دوبارہ برف میں گرا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹریپ میں پھنسا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے آپ کو ٹریپ سے آزاد کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جم کی بہن ان کے پاس آ کر ہنس رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کے گلے میں ایک سوئی آ کر چپ جاتی ہے جس سے وہ یہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اصل میں جم نے اسے اپنے گن سے بے ہوش کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ایڈم کو ہوش آیا تو وہ جم کی گھر کی طرف گیا جہاں پر جم اپنے گن ہاتھ میں لیے ہوئے دوبارہ کھڑا تھا۔ جم اس آدمی سے اس کا مقصد پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے میں ایک سولجر ہوں اور اپنی وائف کو ڈھونڈنے کے لیے نارتھ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر جم بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے تھے وہ کھانے اور میڈیسن کی تلاش میں یہاں پر آئے تھے۔ یہ پہلا انسان تھا جو اپنی وائف کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ جم کو آدمی اچھا لگا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جم اسے ایک ڈیل کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمارے گھر کی پاور ختم ہو چکی ہے، اگر تم ٹریڈ مل چلا کے ہمارے گھر کی بیٹی کو چار کر دو گے تو میں تمہیں میڈیسن اور رہنے کی جگہ دوں گا۔ ایڈم اس کی بات مان کر اسی گھر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس کہاں پر ہے۔ پہلی مرتبہ جم اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس سائنٹسٹ ہے اور وہ کافی عرصے سے گھر نہیں لوٹے اور میری موم ایک سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتی ہے اور آج کل وہ بھی اپنی مشن پر ہے۔ ان کے اس باتوں کے دوران ایڈم نوٹس کرتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر ایک زومبی تھا۔ ایڈم گھر کے باہر جاتا ہے اور ایک بڑا سا پلیٹ لے کر اس پر سر پر مار کر اسے مار دیتا ہے۔ جم نے تو یہ سب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اپنے بہن کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایڈم جب گھر واپس آیا تو جم نے بتایا کہ تم نے اس زومبی کو کیوں مارا، حالانکہ وہ گھر بلٹ پروف ہے، وہ زومبی اندر نہیں آ سکتا۔
ये सुनकर एडम बगैर हैरान हो जाता है कि उन्होंने इस घर में आखिर कौन कौन सी फैसिलिटी रखी हुई थी। खैर एडम को अपना काम पूरा करना था और उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना था। वो दिन रात बिना रुकते हुए उस ट्रेन मील पर भागता रहता है ताकि उन लोगों की बैटरी चार्ज हो जाए, और इससे तक कर वो यहाँ पर गिर भी जाता है। जिम की बहन उसे पानी दे देती है, खाना दे देती है और उसे अपनी पिल्स देकर उसे भी खाने को कहती है। फ्रेश होने के बाद एडम उन लोगों को खाना दे देती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनके ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंसा हुआ था। इसे जिम अपने गन से मार देता है और तभी यहाँ से गुजरते हुए हम यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक लेडी को देखते हैं जो शायद किसी को ढूंढ रहे थे। एडम और वो बच्ची घर में वापस आ जाती है और एडम उन बच्चों के पेरेंट्स की तस्वीर भी देख लेते हैं। यहाँ घर पर उसे एक कार की चाबी भी मिल जाती है और तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो उस कार के जरिए अपनी वाइफ तक जल्दी पहुंच जाएगा और उसे बचा लेगा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की तो उसे पता चला कि ये कार खराब है जो उसे खुद भी नहीं ठीक कर सकता था। ऐसे में वो गैराज से बाहर निकल आया और तभी उसकी नजर पड़ी आउट हाउस के डोर पर। वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो चेक करने के लिए गया लेकिन जिम ने उसे रोक दिया। वो घर वापस आ जाते हैं, खाना वाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं और हम देखते हैं कि सोने से पहले जिम ने अपने आप को हथकड़ी से बांधा हुआ था। जब सुबह एडम की आंख खुली तो उसने देखा कि जिम अपने बिस्तर पर नहीं था। वो बाहर जाकर देखा कि वो अपने घर के आसपास ट्रैप्स ठीक कर रहा था जिनके अंदर ज़ॉम्बीज़ फंस जाया करते थे। एडम को यहाँ पर मसरूफ देखते हुए एडम चुपके से आउट हाउस के डोर पर चला जाता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि अंदर है क्या। अंदर तो उसे ज्यादा कुछ नहीं दिखता लेकिन सिर्फ बिस्तर और कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और साथ ही दीवार पर स्क्रैचेस के निशान भी नजर आते हैं। उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी को कैद करके रखा हुआ था। एडम कुछ देर बाद वापस घर आ जाता है और वो देखता है कि इस घर के इर्द गिर्द एक अजीब आदमी है जो इस घर की तलाशी ले रहा था। वो तुरंत छुप जाता है ताकि उन आदमी को उनके बारे में कुछ पता ना चले, बल्कि खिड़की से जिम की बहनों से हाय कर रही थी। इससे पहले कि वो आदमी उसे देख लेता एडन तभी आकर उस लड़की को भी छुपा देता है और उसकी जान उस आदमी से बचा लेता है। और जिम को ये अंदाजा हो चुका था कि एडन उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसीलिए वो एडम के हथियार उसे वापस दे देता है जो उसने शर्त के तौर पर रख लिए थे। एडम जो अंदर गाड़ी ठीक कर रहा था, इतनी ही देर में उसे जिम की बहन की बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। एडम जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि वही आदमी आया है जो इस घर की तलाशी ले रहा था और इस बार वो अपने साथियों के साथ आया है। वो देखता है कि उसने उस जिम की बहन को भी होस्टेज बना लिया था। जिम अपनी गन से एक आदमी को बेहोश कर लेता है तो पीछे से अचानक दो आदमी गिरकर मर जाते हैं जिसको पीछे से किसी ने शूट कर लिया था और उसको किसी और ने शूट नहीं किया था बल्कि वो जिम की ही मॉम थी। अब वापस आ गई थी। उसने जितनी भी गोली लगाई थी इसमें से एक गोली एडम को भी लग चुकी थी और वो वही बर्फ में गिर गया था, इसीलिए वो फ्लैशबैक में चला जाता है और वो अपनी वाइफ को देख लेता है। ऐसा ही कुछ देर गुजर जाता है और अजीब बात ये होती है कि एडम दोबारा से जिंदा हो जाता है और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका जख्म भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो अपने आप को देखकर ही हैरान था लेकिन जिम और उसकी मोमो से देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थे और वो अब एडम को इशारा करके घर के अंदर बुला लेते हैं और उसे उसकी कंडीशन के बारे में समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर एक मजे का ट्विस्ट था। टीना बताती है कि आम लोग जो वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो अपने दिमाग से कंट्रोल खो देते हैं, पागलों वाले हरकतें करने लगते हैं, दूसरों को मारने लगते हैं। वो बताती है कि इन ज़ॉम्बीज़ में एक स्पेशल ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। स्पेशल ज़ॉम्बीज़ वो होते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं खो देते। इन पॉजिटिव चीज़ों में ये आ जाती है कि उसे ज़ॉम्बीज़ वाला पावर मिल जाता है, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ इमॉर्टल होते हैं तो इस तरह इस वायरस से इन्फेक्टेड स्पेशल ज़ॉम्बीज़ भी इमॉर्टल हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ को भी अगर आसान लफ्ज़ों में डिज़ाइन कर दिया जाए तो वो इंसान और ज़ॉम्बीज़ का कॉम्बिनेशन भी होता है, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन जैसे ही हर चीज़ का एक बुरा साइड इफेक्ट भी होता है वैसे इसका भी है और कभी कभार ये ज़ॉम्बी वायरस पे दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने आप खो बैठते हैं और अजीब व गरीब कामें करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं और जब होश में आते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी टाइम किया हुआ काम कुछ भी याद नहीं होता। यह सारी बातें कहकर वो भी समझ गया था कि वो भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है क्योंकि मूवी के स्टार्ट में भी हमें उसे मरकर जिंदा हुआ देखा था और अब भी। वो एक और शॉकिंग बात एडम को ये बताता है कि उसका बेटा भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस घर के अंदर उस कपल को मारा था
वो कोई और नहीं था बल्कि वो जिम ही था। उस दिन जब कुत्ते ने उसे सूंघा था तो उसे पता चल गया था कि ये ज़ोंबी में बदलने वाला है, इसीलिए ज़ोंबी में बदलने से पहले ही उसने अपनी बहन को सेफ रूम में बंद कर लिया था ताकि वो अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचाए। जिसके बाद उसने उस कपल को मार दिया और इसी वजह से जिम हर रात सोने से पहले अपने आप को बांधता है। फिर रात हो जाती है, एडम सो जाता है और एक बार फिर से उसे ख्वाब में अपनी वाइफ दिखाया जाता है, जिसमें वो देखता है कि उसकी वाइफ का आधा मुंह खून से भरा हुआ है और उसके पास एक मरा हुआ बच्चा भी है। ये देखते ही उसकी जान निकल जाती है और वो रोने लगता है। उसकी उदासी देखते हुए यहाँ पर लीना आ जाती है उसको सहारा देने के लिए और वो बताती है कि दुनिया में सिर्फ वही नहीं जिसे गम है। तो वो उसे अपनी कहानी बताता है कि जब उसके दोनों बच्चे पैदा हुए, दोनों को एक बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था। वो एडम को बताने लगती है कि उन दिनों ज़ोंबी का वायरस भी तेजी से फैल रहा था। मेरा एक हस्बैंड जो एक साइंटिस्ट था, उन्हें स्पेशल ज़ोंबीज़ के बारे में पता चल चुका था। ज़ोंबी वायरस पर रिसर्च करते हुए उन्होंने एक ऐसा डॉट बनाया जिसे जिम में इंजेक्ट करते हुए वो फिजिकली तो एक ज़ोंबी था लेकिन आम तौर पर एक इंसान बन गया, यानी वैसे ही वो एक सुपर ज़ोंबी बन गया और उसे उसकी बीमारी से छुटकारा पा लिया। उस दिन हमें लगता था कि हमारी जिंदगी एक नॉर्मल जी गुजर जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिन्होंने मीना के हस्बैंड को ही ज़ोंबी बना दिया। ज़ोंबी वायरस ने उसके हस्बैंड पर भी हमला कर दिया। वो एक नॉर्मल ज़ोंबी बन गई, इसीलिए टीना को उसे खुद ही मारना पड़ा। ये कहते हुए वो रोने लग जाती है और तभी वहीं पर उसे जिम के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो इस टाइम ज़ोंबी में जाने वाला था। टीना उसे गले लगाकर उसी हाउस के अंदर बंद कर देते हैं और खुद वहां पर बैठ जाती है। अंदर से खूब चीख चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और रोते रहती है। ये देखकर एडम को भी उन पर बहुत तरस आ जाता है। आधी रात को जाकर एडम को सोने के लिए कहता है और खुद ही वहाँ पर खड़ा हो जाता है एक बॉडीगार्ड की तरह। कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं। मीना एडम की और एडम मीना की मदद करते रहते हैं। उन्हें लगा कि लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन लाइफ में एक और बड़ा मसला आ गया। एक दिन टीना की बेटी भर में बेहोश हो गई। टीना उसे उठाकर घर में ले आई और चेक करने पर पता चला कि उसकी बीमारी वापस आ चुकी थी, जिसका कोई इलाज भी नहीं था और अब इस दुनिया में इलाज करने वाला कोई बचा ही नहीं था। इसी वजह से टीना बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन एडम उसे कहता है कि उसे भी उस वायरस से इंजेक्ट कर दो ना, इसी तरह वो सुपर ज़ोंबी बन जाएगी और जिम की तरह जिंदा रह पाएगी। टीना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो ऐसा करने से पहले भी काफी नुकसान उठा चुकी थी। हम देखते हैं कि जिम भी अपनी ज़ोंबी वायरस मूड से वापस आ चुका था। जिम और उसकी मोम उस बच्ची का ख्याल रखा करते थे और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब एडम को ये सब छोड़कर जाना था। टीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और चला जाता है। कुछ देर बीत जाता है और यहाँ पर एक ग्रुप टीना के घर के आसपास आ जाता है। असल में ग्रुप लीडर की बेटी नहीं मिल रही थी, वो एक लड़के के साथ भाग गई थी और असल में ये कपल वही था जो मूवी के स्टार्ट में जिम के घर पर आया था। ये आदमी एक और मर्तबा टीना के होते हुए भी टीना के घर पर तलाशी लेता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी नहीं मिलती तो वहाँ से वापस रवाना हो जाता है। लेकिन वो जाने वाला था तभी उसे अपनी बेटी की गाड़ी यहाँ पर दिख जाती है, जिसकी वजह से वो दोबारा भागते हुए टीना की घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जो एडम जो बाहर सोया हुआ था, इनकी कदमों की आहट से उसे होश आ जाता है। जब उसे पता चलता है कि जिम के घर की तरफ काफी सारे लोग जा रहे हैं, तो वो भी जिम और टीना को खतरे से बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर वो आदमी टीना को टॉर्चर करते हुए उसे पूछताछ कर रहा था कि कहाँ पर रखा हुआ है मेरी बेटी को। टीना बताती है कि मैं सच में उसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो बाद में उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसकी बेटी की चीजें भी इस घर में थी। मैडम यहाँ पर आकर देखता है तो जिम भी वहाँ पर किचन में छुपा हुआ था। वो जिम से पूछता है और फिर अपने हथियार तैयार करके उन पर इस तरह हमला करता है कि शोर भी नहीं होता और वो काफी सारे लोगों को मार भी गिरा देता है। अब वो उस गैंग के लीडर के पास आ चुका था, जिसके पास आते ही वो लोग बहुत सारे गन एडम की तरफ तान देते हैं और एडम उन लोगों को कहने की बजाय अपना गला ही काट देता है और एकदम से मर जाता है। उसने अपने आप को इसीलिए मारा था क्योंकि उसे पता था कि वो इस बार सुपर ज़ोंबी जल्द ही बनने वाला है। उसके मरने के चंद सेकंड बाद ही उसे होश आ जाता है और वो एक सुपर ज़ोंबी में बदल चुका था और वो यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान पर हमला करने लगता है। जबकि टीना अपने दोनों बच्चों को छुपा लेते हैं। एडम ने सबको खत्म कर दिया था, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एडम को होश आते हुए देखते हैं। इस टाइम वो खून से लथपथ था और उसके हाथ में किसी इंसान का पाँव भी था। वो समझ गया कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। वो हिम्मत करते हुए घर के अंदर चला जाता है तो वो देखता है
कि लीटीना ने उसके लिए एक हाथ छोड़ा है। हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को लेते हुए नॉर्थ की तरफ जा रही है। अगर किस्मत में लिखा हो तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, क्योंकि तुम भी नॉर्थ की तरफ ही आ रहे हो। उस लेटर को देखते हुए एडम भी अपना सामान बांधने लग जाता है। उसके बाद वो गैंगस्टर जो उस लड़की के तलाश में था, उसकी बेटी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और दूसरी ज़ॉम्बीज़ को मारकर उनका गोश्त खा रही थी। और बस ऐसे ही इन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।